Hello students, today we will resume with the chapter number 8 Silk Road in the syllabus of class 11th on page number 75 class paragraph. So in this chapter you have read that the chapter is about the narrator's journey to Mount Kailash. He wanted to do Kora. So he started his journey from Rahu, where Lhamo, who lived there, she presented a sheepskin coat to him. Then he started his journey. He saw Kyang on the way. Then he started entering in the rocky wilderness. There he saw nomads' dark tents and the Tibetan mastiffs. So we have been discussing about Tibetan mastiff. So they were the huge, hairy, black dogs who were standing there as guards. So now these shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collar and barked furiously with massive jaws. So here the virtues of those Tibetan mastiffs are expressed. That those shaggy monsters, shaggy means hairy, तो जो घने काले बालों वाले जो दैत्यकार जो वो dogs थे, they were blacker than the darkest night. They wore bright red collars, red color का पट्टा पहने हुए होते थे वो, and barked furiously, और बड़े प्रचंड रूप से बहुत ज़्यादा तेज भौंकते थे, with massive jaws. Their jaws were so heavy. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path. Completely fearless थे वो नरेटर के व्हीकल से, और उनके रास्ते पे सीधे एकदम दौड़ते हुए आ गए. Causing Satan to brake and swerve, और इस वजह से सेतन को ब्रेक लगाना पड़ा गाड़ी को, और गाड़ी को थोड़ा टर्न करना पड़ा, टर्न करके लेना पड़ा, because they came on the way. So on the next page, the dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Easing means before becoming comfortable again. और कंफर्टेबल होने से पहले वो जो डॉग थे वो हमारा पीछा कर चुके थे करीब 100 मीटर तक वो नरेटर की गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आए, because they thought that they were entering in their property. Having seen us off the property, हमें ये देखकर कि हम उनकी प्रॉपर्टी से दूर हो चुके हैं, उनके टेंट से, तब तक वो ऑलरेडी उनका 100 मीटर तक पीछा कर चुके थे. जब उन्होंने देख लिया that they were off from their property, then they stopped. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts. ये बात समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, या मुश्किल नहीं थी, समझना मुश्किल नहीं था कि क्यों ये जो डेंजरस, फेरोशियस मीन्स डेंजरस, जो भयानक ये जो तिब्बती ये जो डॉग्स हैं, ये चाइना के साम्राज्यवादी दरबार में क्यों पॉपुलर हुए. At that time they were famous there as guards, because these hairy monsters are so dangerous in looks, and they have big jaws, they bark furiously. तो शिकारी कुत्तों के रूप में चाइना के साम्राज्यवादी दरबार में रखे जाते थे, पाए जाते थे. Brought along the Silk Road in ancient times, so पुराने समय से ही, प्राचीन समय में इन्हें सिल्क रोड पर ले आया गया था. चीनी जो भारतीय और वो रूट जो भारत और चीन को जोड़ता है, तिब्बत और चीन को, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और तिब्बत की रिस्पेक्ट के रूप में, कि एक ट्रिब्यूट माने जाते हैं अभी तिब्बत में, और ये वहाँ से लाए गए थे पुराने समय में. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. Now the narrator, when he went further, then he could see snow-capped mountains, snow-covered mountains, which were gathering
ऑन द हॉरिजॉन, जो कि क्षितिज में इकट्ठे हो रहे थे, दिख रहे थे दूर से। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस। अब नरेटर ने और उसके मेट्स ने एक ऐसी घाटी में प्रवेश किया जहाँ पर नदी काफ़ी चौड़ी दिख रही थी और कंप्लीट मोस्टली वो आइस से कवर्ड थी, बिकॉज द नरेटर ही फिक्स्ड हिज जर्नी सो अर्ली। ब्रिलियंट वाइट, जो पानी था, बर्फ थी बिल्कुल सफ़ेद, एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, जो नदी थी वो चमक रही थी सनशाइन में, धूप में। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, जो पगडंडी थी, दैट वाज सो क्लोज टू बैंक, ट्विस्टिंग विद द मींडर्स, और मींडर्स रिवर्स, और रिवर के जो टर्न थे वो बल खाते हुए जो टर्न ले रही थी वो जो नदी थी। एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, जैसे जैसे धीरे धीरे नरेटर ने हाइट को गेन किया, ऊपर की तरफ वो गए पहाड़ी इलाकों में, तब वो जो घाटी है वो ऐसे आपस में मिली हुई दिखाई दे रही थी, बिकॉज दे स्टार्टेड गेनिंग हाइट। द टर्न्स बिकेम शार्पर, अब जो टर्न्स थे, क्योंकि वो पहाड़ी रास्तों पे चल रहे थे, तो वो जो टर्न्स थे वो और तीव्र हो गए। एंड द राइड बम्पियर, थोड़ा रास्ता पथरीला था तो राइड उनकी खिंचकोले वाली हो गई। सेतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, तो सेतन ने गाड़ी को थर्ड गियर में लगाया जैसा कि वो चढ़ाई करना शुरू कर दिया उन्होंने कार में। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, अब जो रास्ता था वो दूर हो गया था, उस आइसी रिवर से दूर दिखाई दे रहा था। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, नाउ द नरेटर and his mates, they were in car and they had to labor through steeper slopes, जो गहरे शार्प जो स्लोप्स थे उन पे काफ़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके उनको चढ़ना पड़ा। then spotted big rocks, ये वो स्टीपर स्लोप्स थे जो कि स्पॉटेड थे, जिनके साथ थे पथरी बड़े बड़े जो चट्टानें थी वो लगी हुई थी। डॉब्ड विद पैचेस, एंड पैचेस थे उनके ऊपर ऑरेंज लीचन के, यानी कि वो कवर्ड थे, वो जो बिग रॉक्स थी उनके ऊपर गली हुई काई जो थी ना, वो उनके पैचेस दिखाई दे रहे थे ब्राइट कलर के। बीनीथ द रॉक्स हंग्स ऑफ स्नो क्लंज ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, सो उन चट्टानों के, जो कि पहाड़ी रास्तों की साइड में जो चट्टानें थीं, जो कि ब्राइट कलर की ऑरेंज लीचन से कवर्ड थी, उन रॉक्स के नीचे बर्फ के हंग्स थे, ढेले थे बर्फ की, जो लटक रहे थे नियर परमानेंट शेड, उस छाया में जहाँ जो परमानेंट थी, यानी कि वहाँ पर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए उन इनसाइड जो स्नो है उन रॉक्स की, जो पहाड़ी रास्तों की साइड में है, उनकी बर्फ़ कभी पिघलती नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही बर्फ़ के जो लड्डू हैं, ढेले हैं, वो लटके रहते हैं वहाँ इनसाइड। I felt the pressure building up in my ear. As the narrator, he was gaining height, so he felt pressure building in his ears. उसके कानों में प्रेशर सा उसे फील होने लगा ऊंचाई की वजह से, और काफ़ी उसको नाक में भी थोड़ा, नॉस्ट्रिल्स में थोड़ा सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए नरेटर ने अपनी नाक को पकड़ा, स्नॉटेड, उसको एक तरीके से स्नॉट किया, सांस लिया नाक से और साफ किया उनको। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइटमेंट, उसके बाद एक स्ट्रगल करके उन्होंने एक तीव्र मोड़ काटा। एंड सेतन स्टॉप्ड, और जैसे ही वो मोड़ काटा तो सेतन रुक गया। ही स्टॉप्ड हिज कार, ही हैड ओपन्ड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन। इससे पहले कि मैं रियलाइज़ कर पाता, नरेटर रियलाइज़ कर पाता, सेतन ने क्या किया, उसने अपनी खिड़की खोल, अपने साइड का जो दरवाज़ा खोला और अपनी सीट से फटाफट से वो जंप करके बाहर आ गया। स्नो सेड डैनियल एज टू एग्जिटेड द व्हीकल, डैनियल भी व्हीकल से निकल चुका था, बाहर जा चुका था। एंड ही सेड स्नो लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, तो जैसे ही डैनियल है अपने व्हीकल से बाहर निकला, देन ही डिक्लेयर्ड दैट इट वाज स्नो, and when he exited, a breath of cold air came inside, तो हवा का एक ठंडा झोंका कार के अंदर प्रवेश किया उसने, ठंडी हवा लगी एकदम, क्योंकि वो डैनियल ने दरवाज़ा खोला था बाहर जाने के लिए।
A swath of white stuff lay across the track in front of us. Swath means चादर. एक वाइट स्टफ की, वाइट स्टफ इज स्नो हियर, तो स्नो की जो चादर थी वो ठीक हमारे रास्ते पे सामने अक्रॉस द ट्रैक बिछी पड़ी थी. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, शायद ये 15 मीटर के करीब फैली हुई थी. बिफोर इट पीटर्ड आउट, ख़त्म होने से पहले. एंड द डर्ट ट्रेल रीअपीयर्ड, उसके बाद वो जो गंदा रास्ता था धूल मिट्टी वाला वो रीअपीयर हो रहा था, दिख रहा था दोबारा. द स्नो कॉन्टिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और दोनों तरफ बर्फ जारी थी. बर्फीला रास्ता है. स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, और जो किनारे थे वो खड़ी ढलानों वाले थे, बिल्कुल खड़े किनारे थे, स्मूथ थे साइडों के. द बैंक वॉज टू स्टीप, जो किनारा था वो इतना खड़ा था फॉर अवर व्हीकल टू स्केप, कि उनकी जो कार थी वो उसके ऊपर साइड के किनारों पर नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि किनारे खड़े थे. सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच, इसलिए वो जो सामने का पैच था स्नो का 15 मीटर के अराउंड, उससे घूम के जाने का भी कोई रास्ता नहीं था. सो व्हाट कुड दे डू? आई जॉइंड डैनियल एज सेतन स्टेप्ड ऑन टू द एनक्रस्टेड स्नो. एनक्रस्टेड मीन जो कड़ी परत वाली जो उठी हुई स्नो थी. तो मैंने डैनियल को ज्वाइन किया, जैसा कि सेतन है वो उस उठी हुई बर्फ़ के ऊपर पैर रख रहा था, स्टेप रखे उसने. एंड बिगेन टू स्लीदर, और जैसे सेतन ने उसके ऊपर पैर रखे तो वो फिसलना शुरू हो गया. स्लाइड फॉरवर्ड, आगे की तरफ फिसलने लगा, मूव करने लगा. उसी समय नरेटर भी कार से बाहर आ गए डैनियल के पास. स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में वो बार बार पैरों से टपा के समय समय पर उस स्नो को देख रहा था. हाउ स्टडी इट वॉज, ये कितनी हार्ड है. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच. अब नरेटर ही सेज कि उसने उस टाइम पे अपनी रिस्ट वॉच को चेक किया, देखा. वी वर एट 5210 मीटर्स अबोव सी लेवल. हम कितनी ऊंचाई पे थे? समुद्र के तल से करीब 5210 मीटर की ऊंचाई पर. Because they were crossing a pass. The snow did not look too deep to me. बर्फ मुझे बहुत गहरी तो नहीं लगी, कि बहुत गहराई की तो नहीं है. But the danger wasn't its depth. लेकिन खतरा इसकी गहराई नहीं था. Daniel said, ऐसा डैनियल ने बताया. So much as its icy top layer. इसकी जो ऊपर की जो बर्फीली परत है वो ज़्यादा खतरनाक है. If we slip off, the car could turn over. और अगर वो उसके ऊपर से स्लिप हो गए तो उनकी कार पलट भी सकती थी. एक्चुअली खतरा ये था. और अगर उनकी कार टर्न ओवर होती तो मे बी ये वैली में जाके गिरती या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था. ही सजेस्टेड एज वी सा सेतन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट. ऐसा डैनियल ने सजेस्ट किया कि अगर हम स्लिप हो गए तो कार पलट भी सकती है. एज वी सा सेतन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, और जैसे हमने सेतन को देखा कि वो क्या कर रहा था, वो हाथ में मिट्टी भर के मुट्ठियों में जो जितना उसके हाथों में आ सकता था लेकर आया. एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और उसने उस मिट्टी को उछाल दिया उस जमे हुए सरफेस के ऊपर. वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सोल. हम दोनों ने उसको पिच किया, जमाया. और जब स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉइल, जब स्नो है वो मिक्स हो गई उस सॉइल के साथ, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेतन्स लोड. तो मैं और डैनियल भी बाहर ही रुके रहे तब तक सेतन के उस व्हीकल के लोड को कम करने के लिए. बैठे नहीं वो वापस कार में, ताकि ज़्यादा वजन ना हो जाए, बोझ ना हो जाए. ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो. उसने वो वापस आया और कार को उसने डर्टी गंदी स्नो की तरफ चलाया. इज द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस. बड़ी आसानी से उसने उस कार को उस टॉप जो आइसी सरफेस था, वो बर्फीला जो ऊपर का पट था, उसके ऊपर से उसको ले गया. एंड स्लोली ड्रॉव इट्स लेंथ विदाउट अपारेंट डिफिकल्टी. और बड़े आसानी से, बड़े स्लो वे में उसने उस लेंथ को ड्राइव करके क्रॉस किया बिना किसी ज़्यादा डिफिकल्टी के. Apparent means any. 10 minutes later we stopped at another blockage.
10 मिनट के बाद हम दूसरे ब्लॉकेज पे, एक और बाधा पे की वजह से रुके। नॉट गुड सर, सेतन अनाउंस एज ही जम्प्ड आउट। तो सेतन बाहर निकला जंप करके और उसने फिर डिक्लेयर किया कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट मीन्स देयर वॉज अ प्रॉब्लम। सेतन अनाउंस एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। ऐसा सेतन ने अनाउंस किया जब वो बाहर आया, जंप करके एकदम बाहर निकला उस सीन को सर्वे करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे क्या एक्चुअली सीन क्या था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो। इस बार सेतन ने डिसाइड किया कि वो बर्फ से घुमा के अपनी कार को मतलब टर्न करके वहां से क्रॉस करेगा। सो देयर वाज अ वे टू ड्राइव अराउंड द स्नो। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स। एक्चुअली जो स्लोप था वो काफ़ी गहरा था, तीव्र था, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी जो पत्थर थे वो जड़े हुए थे, पथरीला था रास्ता। बट समहाउ सेतन नेगोशिएटेड देम। नेगोशिएट मीन्स अवॉइड। तो किसी तरह से सेतन ने उनको अवॉइड किया, किसी तरह से उनसे कार को बचाया। हिज फोर व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट। और उसका वो 4 पहियों की जो गाड़ी थी वो एक ऑब्स्टेकल से दूसरे ऑब्स्टेकल की तरफ हिचकोले खा रही थी। लर्चिंग मीन्स हिचकोले खाना, मूव करना, ऐसे डग्गे खाना। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स। जब वो ऐसा कर रहा था उसने एक तरीके से जैसे घुमा कर गाड़ी को लिया, तो जैसा कि गाड़ी उतरी तो थोड़ा पथरीला रास्ता था साइड में, और उसने एकदम से वापस गाड़ी को ट्रैक पे चढ़ाया। और ये करते समय उसने एक हेयर पिन बैंड यानी कि तीव्र मोड़ काटा। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। वापस उस ट्रेल को प्राप्त करने के लिए जहाँ पे स्नो कलेक्टेड नहीं थी। सो ही अगेन जस्ट regained that trail. Okay students, we'll continue with the same chapter in next video. Till then, thank you so much.